Hello students, this is the last part of chapter lesson 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. In my previous video, part 3, I told you about the understanding of freedom according to Nelson Mandela. Now we will see last part of the story in which Nelson Mandela talks about his hunger for freedom. Let us see. The part is starting from here. Yes. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. Very simple. कि तब मैंने जब ये देखा कि तीनों फ्रीडम्स नहीं हैं, देन आई स्लोली सॉ दैट, तब मुझे ये धीरे धीरे देखने लगा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. केवल मेरी ही आज़ादी छीनी नहीं गई है, बल्कि मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स सब गुलाम थे, किसी के पास आज़ादी नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed means, meaning is given, reduced, कि मेरी आज़ादी नहीं reduce कम की गई, छीनी गई, but the freedom of everyone who looked like I did. मेरे जैसे दिखने वाले हर किसी की फ्रीडम जो है, मेरे जैसे दिखने वाले का मतलब यहाँ पर क्या है? Black people. That is when I joined the African National Congress. This is the party name which I told in my first part. It's a party name, African National Congress. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. Then he said that my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Freedom of my people. My hunger for freedom became the hunger for my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. In these important lines says that it was the desire for the freedom of my people, कि मेरी इस इच्छा के, desire means इच्छा, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life. मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया इसी इच्छा की वजह से. Which desire? Freedom of my people. What type of freedom? To live their lives with dignity and self respect. Now again I would like to tell you in sequence कि उस डिज़ायर से क्या इफेक्ट पड़ा. What was the effect of that freedom on the life of Nelson Mandela? कि that desire of freedom, number one, transformed a frightened young man into a bold one. Frightened young man को किस में बदल दिया? Bold one में. Second, that drove a लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. हमने पहले भी पढ़ा कि वो पहले लॉ अबाइडिंग था. नेल्सन मंडेला अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, लॉज जितने भी थे उनको फॉलो करता था, लेकिन अब वो क्या बन गया? क्रिमिनल. किसकी वजह से? उसी फ्रीडम की वजह से. कि दैट फ्रीडम, दिस फ्रीडम, ड्यू टू दिस फ्रीडम, ड्यू टू दिस फ्रीडम फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. जो डरता था आज वो बोल्ड बन गया. सेकंड क्या है? ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग टर्न टू बिकम ए क्रिमिनल. जो पहले वाइट पीपल का लॉ फॉलो किया करता था अब क्या बन गया? क्रिमिनल. थर्ड इज टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम. थर्ड, अर्ली ही वाज ए फैमिली लविंग हस्बैंड. डू यू रिमेंबर ट्विन ऑब्लिगेशंस? ही वाज ए फैमिली लविंग हस्बैंड. उसको छोड़कर क्या बन गया? ए मैन विदाउट ए होम. यू रिमेंबर लाइफ ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, हमने पढ़ा ऊपर अभी. फोर्थ इज दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. मॉन्क क्या होते हैं? जो भिक्षु होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, नन, यू माइट हैव हर्ड, बेगर्स. कि लाइफ लविंग मैन को किस में चेंज कर दिया? लाइक ए मॉन्क. मॉन्क होते हैं जो सेक्रीफाइस, जिनको कुछ नहीं चाहिए. तो ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ लाइक ए मॉन्क. तो ये इफेक्ट किस चीज़ से आया? ड्यू टू फ्रीडम, ड्यू टू डिजायर ऑफ
फ्रीडम, डिज़ायर फॉर द फ्रीडम। कहने का मतलब डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ मंडेला ब्रॉट दीज 4 चेंजेस इन हिज लाइफ, एनिमेटेड लाइफ। नंबर 1 आपको मैंने बता दिया है, ये सारा आपने यहाँ तक क्लियर करना है, मॉन्क तक। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. नेल्सन मंडेला कहता है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस, मेरे इतने ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं हैं और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, और भी आदमी हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free. कि जब मुझे ये पता चला कि my people were not free, तो मेरे पास जो लिमिटेड फ्रीडम्स थी I could not enjoy, मैं उसको भी enjoy नहीं कर पाया। Further, Mandela says that freedom is indivisible. फ्रीडम को आप बांट नहीं सकते, फ्रीडम इज indivisible, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। The chains on any one of my people were the chains on all of them. अगर मेरे ब्लैक लोगों के ऊपर चैन्स हैं, जंजीरें हैं, गुलामी की जंजीरें हैं, वो चैन्स जंजीरें सभी के ऊपर हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे लोग, ब्लैक पीपल जो लोग हैं, अगर वो जंजीरों में हैं, गुलाम हैं, तो वो जंजीरें मेरे लिए भी हैं, मैं भी गुलाम हूँ। ही हैज़ मेड क्लियर इन दिस लास्ट पैरा दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ये पैरा समझने वाला है। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। अब मीनिंग समझे ऑपरेसर का। ऑपरेसर मीनिंग क्या होता है? जो एक्सप्लॉयट करने वाला, एक्सप्लॉयट करता है जो, हिंदी में एक्सप्लॉयट को कहते हैं शोषण करने वाला। नेक्स्ट इज ऑप्रेस्ड। इसका मीनिंग समझें आप, दोनों मीनिंग क्लियर होना चाहिए तभी आपको लाइन समझ आएगी। ऑप्रेस्ड मीन्स जिसका शोषण किया जाता है, हु इज एक्सप्लॉयटेड, हु इज एक्सप्लॉयटेड, जिसका शोषण किया जाता है, हु इज एक्सप्लॉयटेड। ऑप्रेसर करने वाला, ऑप्रेस्ड जिसका शोषण, एक्सप्लॉयटेशंस किया गया है। लास्ट में मंडेला कहता है कि आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। शोषण करने वाले को और शोषण करवाने जिसका किया गया, दोनों को ही आज़ाद किया जाना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है, ही इज ए प्रिजनर, वो कैदी है। ही इज ए प्रिजनर, वो कैदी है। किस चीज़ का कैदी है? नफरत का, हेट्रेड का, उसके दिल में नफरत बसी रहेगी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। बार्स क्या होता है? सलाखें होती हैं। इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइस मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। पक्षपात, जब अपने आप को ज़्यादा पसंद करना, दूसरों से हेट करना। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, छोटी सोच। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. देखो, यहाँ नेल्सन मंडेला कहना चाहता है कि मैं ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया हूँ साउथ अफ्रीका का, अगर चाहूँ, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन कटेल द फ्रीडम ऑफ वाइट पीपल। तो जितने भी वाइट पीपल थे उनकी फ्रीडम को मैं कटेल कर सकता हूँ, बट नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। दिस इज द डिफरेंस, कि अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। बिल्कुल उसी तरह एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो वो करने को तो वाइट पीपल के साथ बदला भी ले सकता है। तो व्हाट देन अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी? स्पीच में उसने कहा था, नेवर दिस लैंड विल फेस एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। लास्ट लाइन, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity. मंडेला says that oppressed, जिसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, अत्याचार किया गया है, एंड द ऑप्रेसर जो एक्सप्लॉयट करता है, alike दोनों, alike मतलब दोनों, सिमिलरली बोथ
आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही जो हैं अपनी ह्यूमैनिटी से ठगे जाते हैं, वो आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दे आर नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. So this is the chapter lesson 2 Nelson Mandela. I hope you understood well. Let us see the questions you have to complete now. Short question you have to do. Twin obligations I have. What twin obligations does Mandela mention? I hope that no need to explain this question. Twin obligation: first, duty towards family; second, towards people, community, and country. Second question: what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast the transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले बता दिया, पार्ट 3 में सिमिलर आपको करना है. ये रुक जाए कब बोलता चलना है. Mandela think the oppressor is free. Why not? थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू. क्या मंडेला ये सोचता है कि ऑपरेसर इज फ्री? जो ऑपरेसर मीन्स जो एक्सप्लॉइट करने वाला है, क्या वो फ्री है, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to do question number 5. Yes, from this part, this is the important question. Question number 5: how did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेलास की जो हंगर थी, हंगर फॉर फ्रीडम, चेंज हिज लाइफ. वही 4 बातें आप लिखोगे जो मैंने अभी बात को बताई हैं. हंगर फॉर फ्रीडम, फॉर द डिग्निटी एंड लाइफ ऑफ पीपल, transformed into a frightening man to bold one, or life-loving man to like a monk living a life of secrecy. In the 5th para I mentioned, last para, you have to do all the questions. So dear students, in this way you have to cover this chapter, all question answers. I hope you understood. Thank you. Have a nice day.